حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر ٹرین مسافر پر اشرار کا حملہ، 20 افراد نے کی مار پیٹ۔ حیدرآباد کے حفیظ پیٹ ریلوے اسٹیشن پر واقعہ، مذہبی شناخت کی وجہ نشانہ بنانے مسافر کا الزام۔ تلنگانہ میں میونسپل انتخابات کی رائے دہی، چیف منسٹر، ڈپٹی چیف منسٹر اور وزراء نے بھی ووٹ کا کیا استعمال۔ کچھ مقامات پر سیاسی کارکنوں کے درمیان جھڑپیں۔ GHMC 3 حصوں میں تقسیم، GHMC کے علاوہ ملکاتگیری اور سائبرآباد میونسپل کارپوریشنوں کی تشکیل۔ جے رنجن GHMC کے اسپیشل آفیسر مقرر۔ شہر میں اب بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کی خیر نہیں، 1 مارچ سے بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر سخت کریک ڈاؤن۔ پولیس نے کیا اعلان، بغیر لائسنس شخص کو گاڑی دینا بھی قرار دیا جرم۔ حیدرآباد میں آتش زدگی واقعات کے بعد ہائیڈرا کی بڑی کارروائی، عمارتوں کی خصوصی جانچ مہم شروع، فائر سیفٹی کے خلاف ورزی پر سخت ایکشن پلان کا اعلان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ٹرینوں میں مسلم شناخت دیکھ کر مسافرین کو نشانہ بنانے اور حملہ کرنے کا تازہ واقعہ حیدرآباد کے حفیظ پیٹ میں پیش آیا۔ کہا گیا ہے کہ ایک مسافر محمد عمران مہاراشٹر میں لاتو جانے کے لیے ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ تقریباً 20 افراد نے ان پر اچانک حملہ کر دیا اور شدید مار پیٹ کی۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ عمران نے عہدیداروں کو بتایا کہ یہ گروپ اچانک ٹرین میں آیا اور انہیں اٹھا کر مارنے لگا۔ کہا گیا ہے کہ داڑھی اور ٹوپی دے کر انہیں حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ کہا گیا ہے کہ یہ حملہ منماڑ کاکیناڈا شرڈی ایکسپریس میں پیش آیا جو حیدرآباد کے حفیظ پیٹ اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی۔ عمران نے بتایا کہ حملہ آور شرپسندوں نے انہیں شدید مار پیٹ کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیقات میں تعاون کے لیے وہ حملہ آوروں کی شناخت بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے حملہ آوروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکام سے مطالبہ کیا۔ ابھی کہاں گئے وہ لوگ آپ کو مارے والے؟ مارے والے کیا ہوا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، کس کو معلوم؟ مجھے بس اٹھایا اور مارنے چالو کر دیا دونوں تھے۔ ابھی آپ آگے جا رہے ہیں حفیظ پیٹ میں چڑھا؟ اچھا، کس میں چڑھا؟ اے کوچ میں چڑھا، اس میں چڑھا؟ کون چڑھے تھے پتا نہیں، جھگڑے کر رہے تھے تو میں نے بولا بھائی کیوں مار رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہاں سے اٹھا کے ڈبے میں باہر پوچھو آپ، ہاں میں نے باہر مارے، باہر ملا کر ہاں پلیٹ فارم پہ مارے، حفیظ پیٹ کا پلیٹ فارم پہ مارے ان لوگ؟ ہاں پتھر کچھ بھی پھینک کے مارے۔ اب 3 مرتبہ چکر مارے میں، 3 مرتبہ سنڈاس باتھ روم، 25 آدمی آئے۔ ہاں 3 مرتبہ سنڈاس باتھ روم میں چھپ کے کون مارا؟ کیسا ہاں ہماری اسٹیشن پہ لوگ آ رہے تھے، گاڑی رکی نا، آ رہے تھے تو سنڈاس باتھ روم۔ آئیڈینٹیفائی کرتی مارے والوں کو آئیڈینٹیفائی کرے کیا؟ کوئی بھی مارے والے پہچانتی ہے آپ؟ زور سے بولیے، پہچان وہ بولے گا کسی کو بھی نہیں بولے۔ تلنگانہ بھر میں بلدیاتی انتخابات کے لیے آج رائے دہی کا انعقاد عمل میں آیا۔ صبح سے رائے دہی کا آغاز ہوا اور دھیرے دھیرے رائے دہی کی رفتار میں تیزی آ گئی۔ مختلف اضلاع میں پولنگ بوتھ پر رائے دہندوں کی طویل قطاریں دیکھی گئی جو ووٹ ڈالنے وہاں جمع ہوئے تھے۔ چیف منسٹر مسٹر ریونت ریڈی نے حیدرآباد سے بذریعہ ہیلی کاپٹر کوڈنگل پہنچتے ہوئے وہاں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ رائے دہی کے بعد چیف منسٹر ہیلی کاپٹر کے ذریعے حیدرآباد واپس ہو گئے۔ اسی طرح ڈپٹی
चीफ मिनिस्टर मिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिले की मुदीरा म्युनिसिपालिटी में अपने वोट का इस्तेमाल किया। नलगुंडा में रियासती वजीर इमारत व शौरय मिस्टर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडा पब्लिक स्कूल में अपने वोट का इस्तेमाल किया। सदर प्रदेश कांग्रेस मिस्टर महेश कुमार गौड़ ने निजामाबाद के सनफ्लावर हाई स्कूल में अपना वोट का इस्तेमाल किया। म्युनिसिपल इंतखाबात की राय दही के दौरान चंद मुकामात पर बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान झड़पों के वाक़यात पेश आए। बीआरएस कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर कांग्रेस कायदीन पर इख्तिदार के बेजा इस्तेमाल और राय दही में बड़े पैमाने पर धांधलियों का इल्जाम आयद किया गया। जिले मेदक की नरसापुर म्युनिसिपालिटी में बीआरएस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प हुई। इसी तरह मंचरियाल में भी सियासी कारकुनों के दरमियान झड़प हुई। ताहम दोनों ही मुकामात पर पुलिस ने सूरत हाल को काबू में कर लिया। पुलिस की जानिब से राय दही को पुरअमन और पुरसुकून बनाने के लिए वसी तर इंतजाम किए गए थे। ఒకసారి వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళు ఎట్లా దౌర్జన్యం చేస్తారు చూడండి. నా పుట్టిన గడ్డ నిజామాబాద్ పట్టణంలో రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి అవకాశం ఓటు హక్కుని వినియోగించడం జరిగింది. 2.5 గంటల్లో జరిగిన ఓట్ల శాతం చూస్తే కొంచెం తక్కువగా ఉంది. నేను రాష్ట్ర ప్రజలకి ఎక్కడైతే మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయో, ఏ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయో అక్కడ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఓటు హక్కు అనేది ఒక అమూల్యమైనటువంటి వరం, రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి వరం. ఆ వరాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సరైన పద్ధతిలో ఓటు శాతం పెరిగితే క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి నాయకులు ఎన్నికే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే నేను రాష్ట్ర ప్రజలకి నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. తక్షణమే వచ్చి మీ ఓటు హక్కును వినియోగించుకొని నాణ్యమైనటువంటి నాయకుల్ని ఎన్నుకునే విధంగా దోహదపడాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ వారు చాలా చోట్ల మొత్తం పేరిట ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు చేశారు, ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నారు. संगारेड्डी म्युनिसिपालिटी के 34वें वार्ड के पोलिंग स्टेशन पर उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जग्गा रेड्डी और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के दरमियान तल्ख झड़प पेश आई। इत्तलात के मुताबिक जग्गा रेड्डी इस शिकायत पर पोलिंग मरकज पहुंचे कि वहां तैनात सर्कल इंस्पेक्टर ने मुबैना तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार के साथ बदसलूकी की और बीआरएस उम्मीदवार के हक में धांधली की कोशिश की। जग्गा रेड्डी ने पोलिंग बूथ में दाखिल हुए और होने की कोशिश करते हुए वोटिंग रुकवाने की धमकी दी, जिस पर पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की और इस दौरान दोनों फरीकों के दरमियान शदीद बहस व तकरार और धक्का मुक्की भी देखी गई। जग्गा रेड्डी ने सीआई की फौरी मुअत्तली का मुतालबा करते हुए इल्जाम लगाया कि ऑफिसर जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, जबकि पुलिस ने हालात को काबू में करते हुए पोलिंग अमल जारी रखा। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी का माहौल देखा गया और मजीद तहकीकात जारी हैं। సినిమా హీరో అనుకుంటున్నా పోలీస్ మొబైల్ నేను అపోజిషన్ లో కూడా చెప్పినా నీకు నా క్యాండిడేట్ చేయరు గల్లబట్టినంత ధైర్యం ఉందా సిఐకి। रियासती मुशीर बराए अखिलियती उम्र व SC/ST मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी बल्दिया के वार्ड नंबर 49 गंज हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन स्कूल पहुंचकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कामारेड्डी म्युनिसिपालिटी में कांग्रेस के हक़ में
सुनामी चल रही है और अवाम भरपूर हिमायत का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत कायम है और कामारेड्डी बल्दिया की तरक्की के लिए मजीद फंड्स हासिल करके शहर को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बी ने अवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस के हक में वोट देकर पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाए ताकि इलाके की हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ఎలక్షన్లో వార్డ్ నంబర్ గెలిచి వచ్చినాను. నేను కామారెడ్డి ప్రజలతో ఓటర్స్తో అపీల్ చేస్తున్నాను. దయచేసి మీరు ఇంట్లోకి వెళ్ళి మీ యొక్క అమూల్యమైన ఓటు వినియోగించండి. ఓటు విలువ ఎంత ఉన్నదో మన అందరికీ తెలుసు కాబట్టి భారతదేశం భారతీయులు ఉన్నాం. మన ఓటు కంపల్సరీగా మీరు చేయండి. అభివృద్ధి ఎవరున్నారు వాళ్ళకని మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఓటు మాత్రం వేసేందుకు రావాలని కామారెడ్డి ఓటర్స్ మహాశయులకు అందరికీ अपील చేస్తున్నాను. आदिलाबाद बल्दियाती इंतखाबात 2026 के दौरान जिले भर में वोटिंग का अमल मुनज़्ज़म और पुरअमन माहौल में जारी रहा। जिले एक्शन हुक्काम के मुताबिक से पहर 3 बजे तक मजमूई तौर पर 57.7% वोटिंग दर्ज की गई। म्युनिसिपल हुदूद में 49 वार्ड्स के लिए 216 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कुल 1,43,655 वोटर्स में 69,813 मर्द, 73,836 खवातीन और 6 दिगर वोटर्स शामिल हैं। से पहर 3 बजे तक 82,880 राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर चुके थे। दर असना जिले कलेक्टर राज शीशा ने सांतला क्वार्टर्स के वार्ड नंबर 38 के पोलिंग स्टेशन 170 पर कतार में खड़े होकर वोट डाला। बादजा उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया और मुत्तल्लिका ओहदेदारान को ज़रूरी हिदायत दी। ज़िले SP अखिल महाजन IPS ने राजना सिरसिला ज़िले के वार्ड नंबर 4 के लिए अपना वोट पोस्टल बैलेट के जरिए इस्तेमाल किया और आवाम से अपील की है कि वो किसी भी लालच या दबाव के बगैर आज़ादाना तौर पर वोट दें। उन्होंने जिम्मेदाराना माशरे की तश्कील में वोट की अहमियत पर जोर दिया। चल रहा है, कहीं पे भी कोई झगड़े का आसार कुछ भी नहीं है। सुबह से कल लास्ट 1 हफ्ते से हमारी पुलिस फोर्स काफ़ी घूम रही है, फ्लैग मार्च कर रही है, रूट मार्च कर रही है, सो दैट जो यहाँ पे वोटर्स है, आवाम है, उनको कॉन्फिडेंस है कि कोई किसी को दबाव डालने के लिए कोई नहीं है। वो इंडिपेंडेंट आके खुद से उनका जिसको मन करता है उसको वोट कर सके। लगभग हम लोग 100 से ज़्यादा केस कर चुके हैं आज तक लास्ट 1 हफ्ते में, कि इलेक्शन रिलेटेड MCC वायलेशन हो या किसी को इन्फ्लुएंस करने का केस हो। लगभग 100 के करीब कई केस हो चुके हैं। आज सुबह से भी अभी तक 4 से 5 केस नमूद हो गए। कोई बिस्किट बांट रहा है तो कोई ब्रेकफास्ट बांट रहा है। ऐसे लोगों पे भी कुछ 3 या 4 ऑटो मावला में, 2 टाउन एरिया में ऐसे भी सीज करके पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हो रहा है। सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप इधर पोलिंग स्टेशन आए, वोट करें, वोट करके फिर घर को चले जाएं, बिना मतलब बाहर ना घूमें, क्योंकि 144 इम्प्लीमेंटेड है। 5 से ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर हमें केस करना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आए, वोट करें, वोट करके घर चले, बट हर कोई वोट करने के लिए पक्का है। धन्यवाद। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में म्युनिसिपल इंतखाबात के पेश नज़र सुबह से ही अवाम जोश खरोश के साथ घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचे ताकि अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सके। वार्ड नंबर 18 में मुकाबला करने वाले म्युनिसिपल कौंसिलर उम्मीदवार में साबिक़ म्युनिसिपल चेयरमैन तंजीम अहमद, DRUCC के शेख फरीद, कविता अशोक कुमार, मोहम्मद वासी, जोहरा जबीन, बदर बेगम और मोहम्मद नसीर शामिल हैं, जिन्होंने अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पहुंचकर वोट डाला। इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और मजमूई तौर पर पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी रहा। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बिल आखिर अहकाम जारी करते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक बड़े कॉरपोरेशन को बरकरार रखने के बजाय 3 कॉरपोरेशनों में तकसीम करने का फैसला किया गया है। अब शहर में 3 कॉरपोरेशन GHMC, मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कायम हो गए हैं। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद कौंसिल की मियाद 10 फरवरी को मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद हुकूमत ने GHMC को 3 हिस्सों में
में तकसीम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकूमत की जानिब से तीनों नए कॉरपोरेशनों के लिए नए कमिश्नरान का तकर्रुर भी अमल में लाया है। आरवी कर्नल जीएचएमसी कमिश्नर बरकरार रहेंगे, जबकि जी श्री जन साबिराबाद की और टी विनय कृष्णा रेड्डी और मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नए कमिश्नरान होंगे। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने सीनियर आईएएस ओहदेदार मिस्टर जयेश रंजन को जीएचएमसी का स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया है। मिस्टर जयेश रंजन ने स्पेशल ऑफिसर जीएचएमसी की नई जिम्मेदारी भी संभाली है। हुकूमत तेलंगाना ने गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 55 11 फरवरी के तहत बल्दियाती हुदूद में बड़ी तंजीमी नौ के फैसले के मुताबिक साबिका ग्रेटर हैदराबाद के जोन्स श्रीलिंगमपल्ली, कुकटपल्ली और कुतबुल्लापुर को मिला कर नई साबिराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तश्कील दी गई, जबकि मलकाजगिरी, उप्पल और एलबी नगर के जोन्स पर मुश्तमिल मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कायम किया गया है। दूसरी जानिब शमशाबाद, राजेंद्र नगर, गोलकुंडा, चार मीनार और खैरताबाद के जोन्स बदस्तूर जीएचएमसी के दायरे अख्तियार में रहेंगे। हुकूमत का कहना है कि इस तंजीम नौ से इंतजामी उमूर में बेहतरी, अवामी खिदमात की तेजी, फराहमी और शहरी तरक्की के मंसूबों को मजीद मौसर बनाया जा सकेगा। तेलंगाना की सियासत में फोन टैपिंग का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। रियासती वजीर बराए रेवेन्यू व हाउसिंग पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम में मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि बीआरएस अब भी खुफिया तौर पर फोन टैपिंग में मुलविस है। इनका कहना था कि सरकारी अफसरान के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में होने वाली बातचीत का बाहर आना मशकूक है और शुबा है कि पुराना साजो सामान अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। वजीर ने दावा किया कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले रही है और जल्द ही ये बेनकाब किया जाएगा कि किन अफराद ने और किन फार्म हाउसेस आम के बाग़ियात में ये आलात छुपा रखे हैं। वाज़ेह है कि फ़ोन टैपिंग केस साबिक़ा बीआरएस हुकूमत के दौर में सियासतदानों, ताजरों, सहाफ़ियों और दीगर अहम शख्सियात के मुबैना गैर कानूनी निगरानी से मुताल्लिक़ संगीन इल्ज़ामात पर मबनी है। दूसरी जानिब अपोजिशन हलकों की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है कि अगर इख्तिदार में आए 2 साल बाद भी हुकूमत खुद को बेबस महसूस कर रही है तो क्या ये रियासती इंटेलिजेंस और महकमा दाखिला की नाकामी नहीं? सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में ये मामला मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ఆ ఫోన్ ట్యాపింగ్ సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్లు ఇంకా వీరి దగ్గర ఉన్నట్లు నాకు అనిపిస్తుంది. ఏదైతే నేను కాన్ఫరెన్స్ లో నేను తీసుకున్న కాల్ని నేను ఏం మాట్లాడానో అని మీరు అడుగుతున్నారో, వీరి దగ్గర ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి ఉండకపోతే ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు. దీన్ని బట్టి ప్రభుత్వం సీరియస్ గా తీసుకుంటది. ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇంకా ఉన్నది అని నిర్ధారణ అవుతుంది. కాబట్టి తప్పకుండా ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ సంబంధించిన దాంట్లో వీరి పాత్ర ఏముందో కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఓపెన్ చేస్తది. ఇంకా ఎన్ని ఎక్విప్మెంట్లు ఏ మామిడి తోటలలో, ఏ ఫామ్ హౌసెస్ లో ఎవరు ఇంట్లో ఉండి ఇంకా దొంగతనంగా ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ లో ఎంతమంది వింటున్నారో ఈ ప్రభుత్వం ఎంక్వైరీ చేసి వారిని కూడా చట్టరీత్యా తగు చర్యలు వారి మీద కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. शहर हैदराबाद में अब बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों की खैर नहीं, क्योंकि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1 मार्च से बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। मुसलसल चेकिंग के जरिए बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों का पता चलाया जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ी चलाने वालों को मशवरा दिया गया है कि वो अपना लाइसेंस अब हमेशा साथ रखें और जिनके पास लाइसेंस नहीं है इन्हें अपना लाइसेंस बनवा लेने का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा गाड़ी मालिकीन को भी हिदायत दी गई है कि वो ऐसे
अफराद को अपनी गाड़ी चलाने की इजाजत ना दें जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। कहा गया है कि कोई गाड़ी मालिक बगैर लाइसेंस याफ्ता शख्स को गाड़ी चलाने देता है तो ये भी जुर्म ही कहलाएगा। सिटी की ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि अगर कोई ऐसा शख्स गाड़ी चलाता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो हादसात की सूरत में इंश्योरेंस की रकम भी हासिल नहीं की जा सकेगी। ऐसे में बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने के संगीन माशी और कानूनी नताइज होंगे। आवाम से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। हैदराबाद में हालिया दिनों पेश आने वाले आतिशबाजी के पे दर पे वाक़यात के बाद हाइड्रा ने फायर डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ मिलकर शहर भर में इमारतों की हिफाजती जांच का बेड़ा खुसूसी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। हुकाम के मुताबिक तमाम इलाके खुसूसन पुराने शहर और जुनूबी हिस्सों में सख्त मुआयना किया जाएगा, जहाँ माजी में फायर सेफ्टी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आ चुकी हैं। नामपल्ली में हालिया आतिशबाजी के वाक़े में 5 अफराद की हलाकत के बाद ये फैसला किया गया, जिसमें एबिट्स रोड पुलिस ने दुकान मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तारी भी किया था। अहदेदार ने वाज़ेह किया है कि जहां भी हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जी पाई गई, ऐसी इमारतों को फौरी तौर पर सील कर दिया जाएगा। बेगम बाजार, दीवान त्योड़ी, रकाबगंज और पत्थरगट्टी जैसे तिजारती इलाकों में फायर फाइटिंग के नाकाफी इंतजामात, तहखानों में कारोबार और राहदारियों में सामान रखने जैसे मसाइल की निशानदही की गई है। हुकाम का कहना है कि शहरियों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मुहिम बिला इम्तियाज़ जारी रखेगी और किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाइड्रा की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी अरादियात के तहफ़्फ़ुज़ और नाजायज़ कब्ज़ों की बर्खास्तगी का सिलसिला जारी है। सिर्फ एक दिन में कार्रवाई करते हुए हाइड्रा ने जुमला 1115 करोड़ रुपये मालियाती सरकारी अरादियात का तहफ़्फ़ुज़ किया। नाजायज़ कब्ज़ाजात बर्खास्त किए गए और सरकारी अरादी के अतराफ फेंसिंग करते हुए बोर्ड्स भी आवेज़ा कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक हाइड्रा ने कार्रवाई करते हुए कोंडापुर में जंगा मुनीकोंटा झील के अतराफ कब्जों को बर्खास्त कर दिया है और 4 एकड़ सरकारी अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है कि इस अराजी की जुमला मालियत 700 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसी तरह अलवाल के कुत्ता चेरू इलाके में भी नाजायज़ कब्ज़ाजात को बर्खास्त करते हुए वहां 8 एकड़ सरकारी अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। अलाहाबादी, जगड़ी नगर और राधा कृष्णा नगर में 2 पार्क्स की अराजियात पर नाजायज़ कब्जा को बर्खास्त करते हुए 1100 गज से ज़ायद अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। बताया गया है कि इन तमाम अराजियात के अतराफ फेंसिंग भी कर दी गई है और सरकारी अराजी होने के बोर्ड्स भी आवेज़ा कर दिए गए हैं। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके जलपल्ली वादी सालिहीन फेज़ 2 की अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूमी पर सरापा एहतजाज बन गए हैं। खस्ता हाल सड़कें, कचरे से भरी गलियां, जगह जगह टूटे हुए मेन हॉल्स और सीवरेज के गंदे पानी का खुले आम बहाव न सिर्फ आमदोरफ्त में रुकावट बन रहा है बल्कि सेहत आमा के लिए भी संगीन खतरा बनता जा रहा है। मुकामी खवातीन ने कहा कि बारिश के दिनों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। बच्चों और बुजुर्गों का घरों से निकलना दुश्वार हो जाता है और बीमारियों के फैलने का अंदेशा बढ़ जाता है। मकीनों का इल्ज़ाम है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिक़ा हुकाम और अवामी नुमाइंदों को शिकायत पेश की गई, लेकिन ताहाल कोई मौसर इक़दाम नहीं किया गया। मुतासरीन ने महेश्वरम की BRS MLA से फौरी मदाखलत का मुतालबा करते हुए जल्द तरक्याती काम शुरू कर देने पर जोर दिया। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि इलाके को बुनियादी शहरी सहूलतें फराहम करके मुस्तकिल हल यकीनी बनाया जाए। मैं यहाँ पे 8 साल से हूँ। देखिए, आने जाने की हर चीज़ की, मेन होलों की, इसकी बहुत प्रॉब्लम है। वादे सालेहीन फेज़ 2 में ये हम लोग को बहुत तकलीफ है। यहाँ पे हम लोग वोट डालते, सब करते, टैक्स वगैरह, लाइट का बिल वगैरह सब बनते, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स को हम लोग को फेस करना पड़ा। ये थोड़ा करा दिए तो आप लोग की मेहरबानी होती थी। इतने सालों से तकलीफ में है, ना गाड़ी आ सकती है, नहीं कुछ नहीं, क्या नहीं। जी हाँ, नहीं तभी भी करते बोल के बोले ऐसा कुछ करे नहीं भैया, आते बोलते और लेकिन करते कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ बोल के नहीं। कोई भी गली में नहीं, इतनी तकलीफ आप यकीन मानिए मालूम है। ये मेन होलों को देखिए आप, इसकी तरफ से एम्बुलेंस तो दूर की बात, ऑटो नहीं आ सकता भाई, एम्बुलेंस तो बहुत दूर की बात है मालूम। जी हाँ,
यहाँ पे तकरीबन एक एक गली में 10-10 ऐसा 12-12-15 घर है भाई, लेकिन क्या है मालूम, तकलीफ से ये हो कि हम लोग बहुत परेशान हो जा रहे मालूम है। बच्चे छोटे छोटे हैं, बीमार पड़े, वो करे तो सब मच्छर और सब चीज फिर करते बोल के 5 साल पहले भी बोले भाई करे, कुछ भी नहीं समझो मालूम है। कोई काउंसलर उन लोग आके नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। ये वादे सालें फेज 2 है, बाकी एरिया में सब हो रहे। आप पीछे जाके देखिए, पहाड़ है वहां तक हो जा रहे मालूम। यहाँ बस्ती बसी हुई, यहाँ नहीं हो रहा मालूम है। दूसरों को लगता है क्या? वो तो मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पे हो गए। वहाँ पे एक पहाड़ा है पूरे, वहाँ पे हर चीज का कनेक्शन है आपको, मेन होन का भी है, नल पाइपलाइनिंग का सबका है। यहाँ पे पूरी बस्ती बसने के बाद भी यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है मालूम है। हैदराबाद के इलाके माधापुर में महकमा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक माधापुर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर G विनय ने मुबैना तौर पर एक मुकदमे से मुताल्लिक़ नोटिस की नकलें फराहम करने और आइंदा गिरफ्तारी से बचने के अवीज़ शिकायत कुनिंदा से 50,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। ACB के रंगे हाथों रेंज हुकाम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और मुलजिम को रकम वसूल करते हुए पकड़ लिया, जबकि रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। मुलजिम ऑफिसर को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया गया है और इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात जारी है। टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम और SR नगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए खुश्क गांजा रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कहा गया है कि टास्क फोर्स और SR नगर पुलिस ने 2 अफराद M डेला भिरा साकिन उड़ीसा और इस्माइल रायता साकिन उड़ीसा को मेटशल मलकाजगिरी से गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से खुश्क गांजा जब्त किया गया। कहा गया है कि टास्क फोर्स और SR नगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार करते हुए खुश्क गांजा जब्त कर लिया, जबकि जुमला 70 किलोग्राम खुश्क गांजा जब्त किया गया, जिसकी मालियत 35 लाख रुपये बताई जाती है। इसके अलावा इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए। कहा गया है कि दोनों मुलजिमीन उड़ीसा से अपनी ज़रई ज़मीन पर गांजे की खाश करते हुए इसे शहर में फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। दाढ़ी और टोपी देकर ट्रेन मुसाफिर पर अशरार का हमला, 20 अफराद ने की मारपीट। हैदराबाद के हफीजपेट रेलवे स्टेशन पर वाक़या, मजहबी शनाख्त की वजह निशाना बनाने मुसाफिर का इल्जाम। तेलंगाना में म्युनिसिपल इंतखाबात की रायदही, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उज़रा ने भी वोट का किया इस्तेमाल। कुछ मकामात पर सियासी कारकुनों के दरमियान झड़पें। GHMC 3 हिस्सों में तकसीम। GHMC के अलावा मलकाजगिरी और साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों की तश्कील। जय रंजन GHMC के स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर। शहर में अब बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। 1 मार्च से बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर सख्त क्रैकडाउन। पुलिस ने किया ऐलान, बगैर लाइसेंस शख्स को गाड़ी देना भी करार दिया जुर्म। हैदराबाद में आतिशबाजी वाक़यात के बाद हाइड्रा की बड़ी कार्रवाई, इमारतों की खुसूसी जांच मुहिम शुरू। फायर सेफ्टी के खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन प्लान का ऐलान। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी।
حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن مینا، عرفات و مزدلفہ کے اے سی VIP ٹینٹس، بی کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، انلمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس ان سائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔